نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی تعلیمات، آپ کی نصیحتیں، آپ کے ارشادات بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ صحابہ کرام کو حلال و حرام کی تمیز سکھائی تو کسی جگہ اللہ کے رسول نے انہیں عزت والے کام کرنا بھی سکھایا، مختلف کاموں کے مختلف امور کے آداب بھی سکھائے۔ ان تمام کاموں میں ایک بات اور ہے جو بہت زیادہ اہم ہے، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ خود بڑے تھے نا، بہت بڑے تھے، صحابہ کرام ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے تھے، تو کبھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتا تھا کہ یہ لوگ جنت کے شوق میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے میں بہت زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں، تکلیف میں ڈال رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر بڑی محبت سے، بہت پیار سے سمجھاتے تھے کہ دیکھو ایک دائرے میں آ جاؤ، اپنے جسم پر اتنا بوجھ ڈالو جتنا برداشت کر سکتے ہو، جتنا نہیں برداشت کر سکتے ہو اتنا نہ ڈالو، بیمار ہو جاؤ گے، تمہیں تکلیف ہوگی۔ مجھے نہ دیکھو، مجھے نہ دیکھو، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قوت عطا فرمائی ہے، طاقت عطا فرمائی ہے، تو مجھ سے مقابلے پر آؤ گے کہ میری طرح کے کام کرو گے تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دو گے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ کو اس پر ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے، مسجد نبوی میں تشریف لائے، 3-4 صحابہ کرام بیٹھے ہیں، وہ آپس میں کسی بات پر مشاورت کر رہے ہیں، کوئی بات چیت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول تشریف لائے تو یہ تینوں کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کیا بات کر رہے ہو؟ تمہارے بیچ میں کیا گفتگو چل رہی تھی؟ اب یہ بھی ممکن ہے کہ رسول اللہ کو بذریعہ وحی اطلاع دے دی گئی ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ نہ دی گئی ہو۔ اللہ کے رسول ویسے پوچھنا چاہ رہے ہو جیسے ہم بھی کچھ دوستوں سے ملتے ہیں، 2-4 دوست آپس میں بات کر رہے ہیں، تو ہم جب ملتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں یار کیا بات چیت کرو، مجھے بھی بتاؤ تاکہ ہم بھی کوئی اپنا حصہ ڈالیں۔ کوئی سیاسی موضوع ہے، کوئی تعلیمی موضوع ہے، کوئی گرمی کا موضوع ہے، کوئی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ کچھ 2-4 باتیں کر لیں۔ تو ان صحابہ نے عرض کیا کہ ہم آپ کی ذات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ کس طرح اتنے بلند مقام پر پہنچے ہیں، ہم آپ کے صحابہ ہیں تو ہم اس مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوسان خطا ہو گئے، ہم حواس باختہ ہو گئے، رسول اللہ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، سن کے چہرہ انور سرخ ہو گیا، انتہائی غصے میں آ گئے، اور فرمائے کہ تم میرے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہو، یعنی جو کام میں کرتا ہوں تم میرے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو وہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا کہ تاکہ مستقل عبادات میں لگا رہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں میں نے 11 کی ہوئی ہیں؟ تم نے نہیں دیکھا میری 11 شادیاں ہیں؟ پھر وہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں صوم وصال رکھوں گا۔ صوم وصال کا مطلب 2 ایسے روزے کہ جس کے بیچ میں کوئی کھانا پینا نہیں، لگاتار 2 روزے، نہ افطار نہ سحر، کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا روزہ رکھتے تھے، اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ تو ان صحابی سے رسول اللہ مخاطب ہوئے اور فرمائے کہ صوم وصال میں رکھتا ہوں، اس کی اجازت مجھے ہے، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے روحانی طور پہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، کیا تمہیں بھی کھلائیں گے؟ تم اپنے آپ کو کیوں تکلیف میں ڈال رہے ہو؟
तुम वो रोजा रखो जिस रोजे का तुम्हें हुक्म दिया गया है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत थी अपने उम्मत पे, शफकत थी, इंतहाई एहसान था अपने सहाबा पे। सख्त गर्मी का मौसम था। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी थी ना, उनकी जिम्मेदारी थी, वो नमाजों के लिए अजानें दिया करते थे। तो हज़रत बिलाल को बुलाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, नसीहत फरमाई कि बिलाल गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़ोहर की अजान थोड़ा सा ताख़ीर से दिया करो, जब तक गर्मी है ताख़ीर से अजान दो, जब तक गर्मी है ताख़ीर से अजान दो, ताकि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ज़ोहर की नमाज का वक्त तो खासा तवील होता है ना, ऐसा तो नहीं कि 2, 2:30, 3 बजे तक ख़त्म हो जाता है, वो तो खासा तवील वक्त होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दर्जे हरारत थोड़ा सा कम हो जाए, गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम हो जाए, लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना आसान हो जाए, थोड़ा गर्मी के मौसम में ज़ोहर की नमाज को, जुम्मे की नमाज को ठंडा करके पढ़ना चाहिए हमें। तो उनसे फरमाया कि अजान थोड़ा सा ताख़ीर से दिया करो। क्या खुद नहीं पढ़ सकते थे नमाज? खुद तो पढ़ सकते थे, कोई मसला नहीं था। मस्जिद नबवी और हुजर मुबारक दोनों आपस में मिले हुए थे, दीवारें आपस में मिली हुई थी, ये मकान था, ये मस्जिद नबवी थी। लेकिन ख्याल था अपने सहाबे किराम का, उन लोगों का जो दूर से मस्जिद तशरीफ लाते थे नमाज पढ़ने के लिए, वो सख्त गर्मी के मौसम में आएंगे, उन्हें तकलीफ होगी, उनकी बीमारियां बढ़ जाएंगी, उनकी बीमारियों में इजाफा हो जाएगा, वो तकलीफ में आ जाएंगे। कोई बीमार आना चाह रहा होगा वो नहीं आ सकेगा। तो फरमाया कि थोड़ा सा हम मौसम को ठंडा करके पढ़ेंगे तो सबके लिए आना मुमकिन हो जाएगा और आसानी हो जाएगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत थी, अपनी उम्मत के लोगों पर शफकत थी, आपका एहसान था, आपकी तरफ से एक रहम वाला मामला था कि साहबे किराम तकलीफ में न आ जाएं, बाद वाले लोगों के लिए भी सबक हो जाए और नसीहत हो जाए। हजरत अबू हाजिम थे, हजरत कैस के वालिद थे। वो कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे यह किस्सा बताया कि गर्मी के मौसम में मैं धूप में बैठा हुआ था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा और फरमाया कि अबू हाजिम साए में आ जाओ, साए में आओ, धूप में ना खड़े हो, धूप में खड़े होगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। चुनांचे हम आज अपनी साइंस को देखते हैं, अपने अतिब्बा को देखते हैं, अपने डॉक्टरों को देखते हैं, तो वो हमें गर्मी के फ़ायदे भी बताते हैं और गर्मी के नुकसानात भी बताते हैं। गर्मी के फ़ायदे भी बताते हैं, गर्मी के नुकसानात भी बताते हैं। गर्मी के फ़ायदे बताए जाते हैं कि ये फसलें पक जाती हैं, फल पक जाता है, इंसान के जिस्म के अंदर जो जहरीले किस्म के जरासीम होते हैं वो मर जाते हैं, वगैरह वगैरह। मेरे घुटने में एक वक्त तकलीफ़ शुरू हुई तो 1-2 डॉक्टरों ने मुझे कहा कि सुबह इशराक के वक्त जो कच्ची धूप होती है उसमें आधा पौन घंटा बैठा करें। मैंने कहा इससे क्या होगा, कोई दवा शवा दे दे वो लेके हम ठीक हो जाए। वो कहने लगे कि इसमें जो फायदा होगा वो दवा में नहीं होगा। तो आजकल तो हर चीज गूगल पे मिल जाती है, हम सबको शौक है थोड़ा सा वहां बैठ के हम देखना चाहते हैं कि इसके क्या फायदे। तो फिर गूगल के सामने बैठ के हमने उसको देखना चाहा कि जी ये जो सुबह सवेरे की जो धूप होती है, जिसको कच्ची धूप कहा जाता है, यानी सूरज निकलने के फौरन बाद 1 घंटे के अंदर अंदर की धूप, 1 घंटा 1.5 घंटा, तो उसके बारे में अतिब्बा ने जो उसके फायदे लिखे हैं, इतने फायदे कि हमारी ग़िज़ाओं में वो फायदे नहीं, डॉक्टरों की बताई हुई दवाओं में वो फायदे नहीं। वो कहते हैं कि आप चंद रोज इस धूप में बैठ जाएं, आपके हड्डियों के, जोड़ों के, घुटनों के जितने दर्द हैं ये सारे अल्लाह खत्म फरमा देगा। ये कुदरत ने इंतजाम फरमाया है, कुदरत ने हमें बनाया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में बार बार फरमा रहे हैं ना कि ये सूरज भी तुम्हारे लिए, ये चांद भी तुम्हारे लिए, सुबह शाम का ये जो वक्त है ये भी तुम्हारे लिए, ये जानवर भी तुम्हारे लिए, ये पानी भी तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारे लिए। तो अल्लाह ताला से ये पूछना चाहिए कुरानी आयत की रोशनी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात और अहादीस की रोशनी में कि ये जो सूरज हमारे लिए, इससे हमारे लिए क्या फायदा है और हम इससे फायदा किस तरह हासिल कर सकते हैं। ये जो चांद मेरे लिए है तो चांद से मेरे लिए क्या क्या फायदे हैं, मैं चांद से कौन से फायदे हासिल कर सकता हूं, कितने फायदे हासिल कर सकता हूं, कितने फायदे हासिल कर सकता हूं।
किस तरह मुझे इन चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से ये चीजें हमें इस्तेमाल करने का हुक्म फरमाया, हमें तलकीन फरमाई। साहबे किराम फरमाते हैं कि हम बैठे हुए थे, अचानक से बारिश बरसना शुरू हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर भी नंगा कर लिया और बटन खोल के अपना कंधा भी नंगा कर लिया। बारिश में एक साहबी कहते हैं कि हमने पूछा कि ये आपने ये क्यों किया। फरमाए कि ये अल्लाह ताला की वो रहमत है जो बराह रास्त अल्लाह की तरफ से आ रही है। तो मैंने सोचा कि ये बराह रास्त मेरे जिस्म पर पड़ना शुरू हो जाए तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। अब आप डॉक्टरों से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि बारिश के पानी में नहाने का कितना फायदा होता है। हमारे जिल की कितनी बीमारियां हैं वो बारिश के पानी से खत्म होती हैं, दूर होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गर्मी का मौसम पैदा फरमाया है तो अल्लाह ताला ने बारिशों का नुज़ूल भी फरमा दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तरबूज भी पैदा फरमा दिया है, आम भी पैदा फरमा दिया, फालसे की नेमत से भी हमें बेरवर फरमा दिया, हमें वो नेमतें भी अता फरमा दी। कुदरत ने दोनों चीजें बताई हैं। अब मुझे और आपको अगर उन चीजों को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता तो वो अलग बात है। आप हैरान होंगे, ये तिब्बे नबवी है ना, इसको पढ़ा करें, इसमें बड़ी मजेदार चीजें होती हैं। बाज़ औक़ात इंसान सोचता है, हैरान हो जाता है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से हमें तालीम फरमाई और किस अंदाज से हमें छोटी छोटी बातें सिखाई। ये जो तरबूज हम खाते हैं, एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी इसे खाना साबित है। ये दौर रिसालत में भी था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर और तरबूज को मिलाकर खाया है। खजूर और तरबूज को दोनों को मिलाकर खाया है और फिर सहाबा से फरमाया कि तरबूज ठंडा है, हमने इसके ठंड को खजूर की गर्मी से तोड़ा है। और फरमाया कि खजूर गर्म है, इसकी गर्माइश को हमने तरबूज से तोड़ा है। अब आप अतिब्बा से पूछिए ये किस तरह ग़िज़ाओं को मिला कर खाने से चीजों को तोड़ते हैं। वो कौन कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिसे आपस में मिलाया जाता है तो हमारे जिस्म के ऊपर उसका मनफी असर पड़ता है, नुकसान होता है। यही तरबूज है। आप लस्सी के साथ पीकर देखें ना, आपका क्या हशर होता है। आप पानी के साथ मिलाकर जरा इसको खाकर देखें, आप लस्सी के साथ मिलाकर जरा तरबूज को खाकर देखें, फिर आप बताएं 1 घंटे के बाद आप अस्पताल में होंगे। 1 घंटे के बाद आप अस्पताल में होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। हर चीज के साथ थोड़ी मिलाकर खाई जाती है। ये जो शादी ब्याहों में मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हमारे सामने रखी जाती हैं और हम चाहते ये हैं कि हर चीज़ हम खा लें। हर चीज़, यानी 2-3 तरह का सालन है और 1-8 तरह का चावल है, मीठा 2-3 तरह का है। तो ये इसलिए नहीं होता कि मैं और आप ये सारी चीज़ें खाएं। आप समझ रहे हैं, ये इसलिए होता है कि अगर हम में से किसी के लिए चावल मना है तो वो सालन खा ले, किसी के लिए चिकन का सालन मना है तो वो मटन पे आ जाए। वो इसलिए नहीं है कि मटन और चिकन दोनों को मिलाकर खा ले, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, सारी चीजें बनी है, लिफाफा भी हमने देना है तो पैसे हम दे रहे हैं, तो लिहाजा वो सारी चीजें हमारे पेट में जानी चाहिए। और फिर आप अपने तबीबों से, डॉक्टरों से पूछें कि मटन और चिकन को जब मिलाकर खाया जाता है तो उसका क्या असर होता है, और जब सालन और बिरयानी को, चावल को आपस में मिलाकर खाया जाता है उसका क्या असर होता है। ये जो मुरगन ग़िज़ाएं आपस में मिलाकर खाई जाती हैं इसका क्या शदीद नुकसान होता है। ये बिल्कुल ना आंखें बंद करके चीजें खाना, उनको इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल एक नामुनासिब सी बात है। मैंने आपको एक मिसाल दी है तिब्बे नबवी से, ये भरी पड़ी है पूरी तिब्बे नबवी। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ये बताया हो कि वज़ू कैसे होता है, ज़कात कैसे देते हैं, नमाज कैसे पढ़ते हैं, तुम हज पे जाओ तो हज कैसे करोगे ना। सिर्फ दीन की बातें हमें नहीं सिखाई हैं, हमें बहुत सारी दुनिया की बातें भी सिखाई हैं। ये दुनिया की बातें है ना सारी, तिब्बे नबवी सारी की सारी दुनियावी बातों से भरी पड़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये पैगाम दिया कि अपनी ग़िज़ाएं ठीक रखोगे
تمہارا بدن تمہارا جسم ٹھیک رہے گا. جب یہ ٹھیک رہے گا تو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے تمہیں پیدا فرمایا ہے وہ مقصد بھی ٹھیک حاصل ہو جائے گا. تو پروردگار کی عبادت کر سکو گے. بیکار طرح کی غذائیں کھاؤ گے بیمار پڑے رہو گے, نماز ہی نہیں پڑھ سکو گے, حج پر بھی نہیں جا سکو گے, روزے بھی نہیں رکھ سکو گے. اپنے آپ کو ٹھیک رکھو. اسی وجہ سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان مادی نعمتوں میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس نعمت کے بارے میں دریافت فرمائیں گے وہ آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے؟ حدیث میں کس نعمت کا ذکر آتا ہے؟ ٹھنڈے پانی کا. ٹھنڈا پانی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے تم نے کیوں مجھ سے بغاوت کی, کیوں سرکشی کی؟ کیا تمہیں دنیا میں گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی نہیں ملا تھا؟ کبھی نہاتے نہیں تھے؟ کبھی پانی پیتے نہیں تھے؟ یہ جو پانی پیے تم نے دنیا میں وہ پیا ہے نا, تو پھر میری تعریف کرنی تھی, میری عبادت کرنی تھی, کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. تو ٹھنڈے پانی کی ایک نعمت ہے, اس کو پینے کی بھی نعمت ہے, اس کو دوسروں کو پلانے کی بھی نعمت ہے. حضرت سعد بن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی. یہ خود ایک میدان جہاد میں تھے, ایک غزوے میں تھے. جب غزوے سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو خبر ملی کہ والدہ فوت ہو گئی تھی اور عزیز و اقارب نے ان کو نماز جنازہ وغیرہ کا اہتمام کر کے تدفین بھی کر دیا. اب ظاہر ہے کہ بہت بڑا ایک صدمہ تھا جو انہیں پہنچا. خاموش ہو گئے, والدہ کے لیے دعائیں کی. ایک آدھ دن گزرا, چند دن گزرے, غم ہلکا نہیں ہوا. نہ والدہ کا دیدار کر سکے, نہ نماز جنازہ کا اہتمام کر سکے. اہتمام تو ہوا لیکن اس میں شریک نہیں ہو سکے, ان کا آخری دیدار ہی نہیں کر سکے, آخری خدمات میں حصہ بھی نہ لے سکے. تو ایک غم ہوتا ہے, انسان ایک غمگین ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں کیا کروں کہ مجھے سکون ملے؟ میں بہت بے سکونی میں ہوں. اگر میں اپنی والدہ کے لیے کوئی صدقے جاریہ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں. میں وہ خدمت تو نہیں کر سکا, تو ابھی ولی یہ خدمت کر سکتا ہوں. حضور نے فرمایا ہاں بالکل, یہ صالح ثواب تم کر سکتے ہو. تو عرض کیا کہ دریافت فرمایا کہ پھر آپ مجھے بتائیں کہ بہترین جو صدقے جاریہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پیاسوں کو پانی پلانا. پیاسوں کو, لوگوں کو پانی پلانا. گرمی کا موسم ہے نا, پانی کی بوتلیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے, گرمی کے موسم میں بہت کم قیمت میں مل جاتی. پانی کی بوتلیں گاڑی میں رکھیں, یہ پولیس والے مل جاتے ہیں, ٹریفک والے مل جاتے ہیں, ٹھیلے والے مل جاتے ہیں. کوئی بس اسٹاپ پہ کھڑا ہے, اس کو تھما کے آگے نکل جائیں. نہ پوچھیں کہ آپ کون ہیں, وہ بھی آپ سے نہیں پوچھے گا آپ کون ہیں. پانی پلاتے جائیں اور نکلتے جائیں. بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صاحب وہ راستے سے گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا ہے وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ اسے شدید پیاس لگی ہے. تو ان صاحب نے اپنا موزہ نکالا اور کنویں سے پانی نکال کے اس پیاسے کتے کو پلا دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ وہ انتہائی گناہگار آدمی تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی, اس کی مغفرت فرما دی. یہی واقعہ ایک فاحشہ عورت کے بارے میں بھی آتا ہے. راستے سے گزر رہی تھی, ایک پیاسے کتے کو کنویں کے برابر میں دیکھا, قریب میں, پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان باہر نکلی ہوئی تھی. فاحشہ عورت, انتہائی بد کردار عورت. اس نے اپنی چادر نکالی, موزہ اتارا, وہ چادر کے ساتھ موزے کو باندھا, کنویں میں موزہ پھینکا, اس میں سے پانی بھرا, اس کتے کو پانی پلا دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فاحشہ عورت تھی, اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے برکت سے اس کی بخشش فرما دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک انتہائی گناہگار انسان اگر اپنی بخشش کروانا چاہے نا تو اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ پیاسوں کو پانی پلائے. وہ پیاسوں میں پھر انسان بھی ہیں, پیاسوں میں پھر جانور بھی ہیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں نا کہ وہ راستوں میں کولر رکھے ہوئے ہوتے ہیں,
गर्मी के मौसम में आपने भी देखा होगा किसी बस स्टॉप पे रास्तों में दो दो तीन तीन चार चार कूलर रखें और लोग बड़े एहतिमाम के साथ उसमें पानी भरते हैं, उसमें बर्फ भी डालते हैं, उसके साथ गिलास रखते हैं। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसने पानी पिया ना मुझे पता ना आपको पता। लोग जानवरों के लिए, परिंदों के लिए पानी रखते हैं, कौवों के लिए, कबूतरों के लिए, चिड़ियों के लिए दाना रखते हैं। कौन सी चिड़िया कहां से आई, किसने वहां से दाना लिया और चली गई, कोई खबर नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आपकी फसल है ना, कोई बाग है, और दिन के किसी वक्त में, सुबह शाम में, रात में, कोई परिंदा आके उसमें से कोई दाना लेकर चले जाता है, फरमाया कि अल्लाह ताला ने उस पर भी आपके लिए सदक़े का अजर रखा है, वो भी तुम्हारी तरफ से सदका है, वो भी तुम्हारी तरफ से सदका है। तो मेरे दोस्तों, ये कुछ हदीसें थी जो यहाँ आने से पहले मैंने देखी कि गर्मी के मौसम के आदाब क्या हैं, हमें गर्मी का मौसम कैसे गुजारना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हवाले से हमें क्या हिदायत दी हैं। कितनी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई सहाबे किराम से, फरमाया कि लानत वाले कामों से अपने आप को बचाया करो। सहाबा ने उसकी लानत वाले काम क्या है? फरमाया कि लानत वाले काम ये हैं कि लोगों के आराम की जो जगह है, जो सायादार जगह है, उसको खराब कर देना, वहां जाके पेशाब करके आ जाना। जहां से लोग जाते आते हैं, जो गुजरगाह है, रास्ता है, रास्तों में पेशाब कर देना। पानी का एक कुआं है, घाट है, उसके करीब पेशाब कर देना। अब लोग वहां से पानी कैसे भरे? रास्ते में बोलो बराज कर दिए, लोग वहां से कैसे गुजरे? दरख्त के नीचे हमने पेशाब कर दिए, लोग वहां आकर कैसे बैठे? और मैं कि ये रास्तों के आदाब नहीं है, रास्तों का अदब यह है कि उस जगह को ठीक रखा जाए, उस जगह का एहतमाम किया जाए। हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जो अपने घरों के बाहर दरख्त लगाते हैं, साया रखते हैं, लोग आकर बैठते हैं, उन्हें खुशी होती है। और ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके घरों के बाहर अगर दरख्त थोड़े से भी ऊंचा हो जाए वो उसे कटवा देते हैं। पूछो क्यों? वो कहते हैं लोग आके बैठते हैं, हमें तकलीफ होती है। मुख्तलिफ किस्म की ज़हनीयत है ना, तरह तरह की सोच है, तरह तरह की सोच है। अल्लाह ताला हमारी नीयतों पर हमें अजर अता फरमाता है, हमारी नीयतों पर हमें सवाब अता फरमाता है। तो गर्मी का अपना एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। आजकल हमारे यहाँ कराची में ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे मासूम बच्चों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। मैं तो हैरान होकर रह गए, इस एक हफ्ते में 600-700 अफराद गर्मी की वजह से फौत हो गए, सिर्फ हमारे कराची शहर में। ठीक है, बहुत बड़ा शहर है, लेकिन 600-700 अफराद, 800 अफराद का मौसम की वजह से दुनिया से रुखसत हो जाना, जान की बाजियां हार जाना, कोई मामूली बात तो नहीं है। इसलिए ख्याल रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अपने आप को टारजन ना बनाए, अपने आप को इतना ताकतवर ना बनाए कि जी हमारे ऊपर गर्मी असर नहीं करती। गर्मी कब असर कर जाए, कब जो है वो नुकसान पहुंचा दे, कुछ पता नहीं चल रहा होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिदायत जो हमें दी हैं, इसी मकसद से दी हैं कि ताकि हमारे लिए उन हिदायत पर अमल करने में आसानी हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।